Hello students, today we are going to learn about the market failure in case of externalities. In previous video, we have discussed about the market failure and the market failure in case of public goods. Now we are going to discuss the externalities and how market fails in case of externalities when externalities arises. So first we are going to discuss about the externalities and its types. Then we will discuss the market failure. So what do you mean by externalities? Externality is a situation when the cost and benefit of a person affect the other person or the third parties. That is called the externalities. So it is also called the third party effect. Externality arise when the cost and benefit of one person or through the transaction and through the production and consumption affect the other person or the third person, then externality arise. So the production and consumption of one person affect the production and consumption of one person affect the other person or the third person, then externality arise. Externality may be positive and it may be negative also. So externality is of both the types, positive and negative. Positive externality says when the production and consumption of one person affect and gives the positive impact onto the other person, then it is a positive. For example कि सपोज करो कि किसी ने अपने घर के बाहर एक गार्डन बना दिया है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगाए, तो वो जो बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, उसके एरोमाज बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के होंगे, तो वो गार्डन सिर्फ उसी को ही बेनिफिट नहीं दे रहा है, उसी के लिए वो फ्लावर्स नहीं है, बल्कि वो उस एरिया की ब्यूटी को भी बढ़ा रहा है, प्लस जो उसका नेबर है उसकी एरोमा उसकी नेबर तक भी जा रही है, प्लस जो भी कोई पर्सन उसके घर के नज़दीक से जाएगा, उस गार्डन के पास से जाएगा, तो उसको भी वो अच्छा लगेगा, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. That is a positive externality. Negative externality says if the production and consumption of one person gives a negative impact onto the other person, then it is called the negative externality. सपोज किसी ने प्रोडक्शन, कोई फॉर्म है जो प्रोडक्शन कर रही है और उससे कोई नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है या वाटर पोल्यूट हो रहा है उस एरिया का या एयर पोल्यूट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों पे. या फिर किसी ने सपोज़ करो अपने घर के बाहर जनरेटर लगा दिया, तो जब लाइट जाती है तो जब वो जनरेटर चलता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसका जो नेबर है या फिर वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, वो नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जो है वो उन लोगों को इम्पैक्ट करती है. तो ये नेगेटिव वे में आया, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़. सो इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी मार्केट ऑलवेज फेल्स, क्योंकि पैरेटो ने क्या कहा था, पैरेटो कंडीशन सेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स शुड बी ऑप्टिमम एंड इट विल बी ऑप्टिमम when social marginal cost is equal to social marginal benefit. कि जब SMB and SMC equal होगा, then distribution of factors will be optimum and Pareto condition will be satisfied. but जब भी externality arise होता है तो Pareto optimality की condition achieve नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सोशल मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट में, या फिर प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट में. तो एक्सटर्नैलिटी जब भी अराइज होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमम नहीं हो सकता, दैट्स वाई द मार्केट फेल्स. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. So first we are going to discuss the private cost and private benefit, then we will discuss the social cost and social benefit.
Private cost and private benefit is related to the cost and benefit of an individual person or an individual firm, कि जो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक फॉर्म से रिलेटेड है कॉस्ट और बेनिफिट, दैट इज़ द प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट. कि सपोज कोई फॉर्म प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस प्रोडक्शन की कॉस्ट जो भी आ रही है उसकी फॉर्म की, या प्रोड्यूसर जो भी उसको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लग रही है वो उसकी प्राइवेट कॉस्ट है. सिमिलरली जो भी गुड्स उसने प्रोड्यूस किया और जब उसे सेल करता है तो वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो उसका प्राइवेट बेनिफिट है. तो वो इंडिविजुअली वो कॉस्ट भी बियर कर रहा है और प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है. तो दैट इज़ द प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट, जो कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है. सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी. इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल बेनिफिट और इंडिविजुअल सोसाइटी, किसी एक पर्सन और किसी एक फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी सोसाइटी. सोशल कॉस्ट इज अ टर्म व्हेन ड्यू टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस और फाइनेंशियल प्रोसेस द कॉस्ट दैट बियर्स बाय द सोसाइटी. जो भी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से या किसी भी कंजम्पशन की वजह से अगर कोई इम्पैक्ट, कोई कॉस्ट सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द सोशल कॉस्ट. सपोज किसी फॉर्म ने एक फैक्ट्री लगाई सोहना में. अब वो फैक्ट्री क्या करती है, स्मोक भी निकालती है, प्लस उसका जो केमिकल है वो वाटर बॉडी में जा रही है, देन नॉइज़ क्रिएट कर रही है. तो वो जितने भी पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा, वो सभी को इम्पैक्ट करेगा जो सोना के आसपास में रहता है जहाँ वो फैक्ट्री लगी हुई है. तो वो कॉस्ट क्या है, एक सोसाइटी बियर कर रही है. वो अपने आप को ठीक करने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो वो एक टाइप की कॉस्ट है. तो वो कॉस्ट सोसाइटी खुद बियर कर रही है, ना कि जो फॉर्म जिसने प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाई है उसने बियर की है. तो दैट इज़ कॉल्ड द सोशल कॉस्ट. सिमिलरली द सोशल बेनिफिट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट दैट arises due to any production process and that is benefiting the society. कि कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है जो या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है. सपोज कोई जो फार्मिंग एरिया है या फिर जहाँ पे नहरें थी वहाँ पे अगर डैम बना दिया गवर्नमेंट ने, तो वो उस डैम से क्या है, डैम बनने के बाद फ्लड आने के चांसेस कम हो गए, प्लस उस डैम पे अगर ब्यूटिफिकेशन कर दे तो उस एरिया का वो एरिया जहाँ आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन एरिया बन गया. प्लस डैम बनने के साथ साथ वहाँ पे फ्लड जो आते थे बार बार वो भी ख़त्म हो गए. प्लस डैम बनने के बाद वहाँ उस एरिया के जो लैंड थे उनकी प्राइस बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई है, तो वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रही है. तो कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जिससे पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल बेनिफिट. So private cost and benefit is related to one firm or one individual. Social cost and benefit is related to the whole society. Now we are going to discuss about the types of externalities. Externalities may be positive and negative externality. Both the externality, positive or negative, arise in both way, whether it is consumption or production. So we will discuss about these two types of externalities, positive externalities and negative externalities in consumption and production, and how market fails in positive and negative externalities. So first we are going to discuss about the positive externalities. सबसे पहले देखते हैं कि कंजम्पशन में कैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ अराइज होती है. इफ़ ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अ गुड, if one person is consuming a good and that affect the positively onto the other person, कि अगर किसी एक के कंजम्पशन से किसी एक ने कुछ कंज्यूम किया और उससे दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द
पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ फ्रॉम कंजम्पशन। और इस केस में क्या होता है कि सोशल मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इज़ हायर दैन द प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, कि जिसने जो कंज्यूम किया है जिसने, उससे ज़्यादा सोसाइटी को उससे बेनिफिट हो रहा है। और सपोज़ करो कि आपके घर में आपने बहुत सारी हायर एजुकेशन तक या फिर आगे भी पढ़ाई की है और आपके घर में और लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आपके उस कंजम्पशन से, उस एजुकेशन से आप पूरे अपने फैमिली में जितने लोग हैं उसको एजुकेट कर सकते हो। प्लस आपके आसपास के जो लोग हैं, सपोज़ करो आपके गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ लिख पाए, तो उनको भी एजुकेट कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि जो बेनिफिट सोसाइटी को मिल रही है, आपको जितनी बेनिफिट मिली उससे ज़्यादा सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज़ हायर देन द प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट. So if a consumption of one person affects positively the other person, then it is called the positive externalities from consumption. Second is in production. Production में कैसे positive externality arise होती है? According to Pigou, if some firm renders the benefit or cost of service to the other firm, कि अगर सपोज करो किसी एक फॉर्म को कोई बेनिफिट हुआ या किसी कॉस्ट को लेके रिडक्शन हो गई या कोई किसी भी टाइप का बेनिफिट होता है किसी सर्विस को लेके, तो वो क्या करती है, वो अपने तक ही नहीं लिमिट रखती है, वो दूसरे फर्म को भी उसका बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जो हमने एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पढ़ा था कि किसी एक फर्म को अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसका जो फ़ायदा है वो दूसरे फर्म तक भी पहुंचा रही है। तो दैट इज़ द एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, कि एक के प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, कि किसी एक फॉर्म ने जो प्रोडक्शन किया है उससे अदर फॉर्म्स को भी बेनिफिट मिल रहा है या फिर सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ फ्रॉम प्रोडक्शन. Similarly, in this case also the social marginal benefit exceeds the private marginal benefit and private marginal cost will exceed the social marginal cost. क्योंकि अब यहाँ पे देखो जो बेनिफिट था वो सोसाइटी को ज़्यादा मिल रही थी और इंडिविजुअल को कम मिल रही है, बट कॉस्ट में प्राइवेट जो है इंडिविजुअल की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी और सोशल जो कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि सोसाइटी ने खर्च नहीं किया है, जिसने खर्च किया है प्राइवेट इंडिविजुअल ने या आपने किसी एक इंडिविजुअल ने पढ़ाई की, मान लो उसका एग्जांपल था, तो उसकी जो एजुकेशन पे खर्चा हुआ वो खुद बियर किया था उसने, सोसाइटी ने नहीं बियर किया. प्लस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी एक फॉर्म को बेनिफिट हुआ तो उसने अपनी कॉस्ट बियर की थी, और जो अदर फॉर्म्स को बेनिफिट मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है, तो सोसाइटी की जो कॉस्ट है वो कम होगी और प्राइवेट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी. तो अब यहाँ पर देखो डिफ़र हो गया, कॉस्ट और बेनिफिट प्राइवेट और सोशल दोनों में डिफरेंस आ गई, तो पैरेटो की ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो है वो अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेटो ऑप्टिमलिटी के लिए क्या चाहिए, प्राइवेट बेनिफिट और कॉस्ट दोनों इक्वल चाहिए. जहाँ पे सोशल मार्जिनल बेनिफिट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा उस पॉइंट पे पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन होगी. तो अब देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से मार्केट फेल होता है. So we are going to discuss this with diagram. On OX axis we are taking the quantity and on OY axis there is a price and cost. This D curve is the demand curve and also it is also called the benefit curve, marginal benefit, private and social both. So in case of positive externality, we had seen that private marginal cost is greater than social marginal cost. So private marginal cost curve is above than social marginal cost. SMC is the social marginal cost, PMC is the private marginal cost, and it is also a supply curve. Private marginal cost is the supply curve. And D curve is the marginal benefit, that is the private and society's benefit. So the equilibrium condition, that is
डिराइव्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व इक्वल होंगे। तो ये हमारा पीएमसी सप्लाई कर्व को भी डिनोट करता है। तो ई पॉइंट पे क्या है हमारा इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स प्राइस इज ओपी और क्वांटिटी है ओक्यू। बट पैरेटो की कंडीशन क्या कहती है? पैरेटो कंडीशन कहती है जहाँ पे सोशल मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल बेनिफिट इक्वल होगा, वहाँ पे पैरेटो की ऑप्टिमलिटी कंडीशन होगी और ऑप्टिमम आउटपुट वही होगा। तो अब E1 जो है पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स पैरेटो के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम का होना चाहिए E1 पे, और प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1 प्रोड्यूस होना चाहिए। बट इस केस में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के थ्रू मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो रहा है, तो प्राइस OP है और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया है OQ। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जब भी अराइज होती है तो अंडर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि पैरेटो ने देखो क्या बोला था, Q1 प्रोडक्शन और एक्चुअल में कितना हो रहा है OQ। तो दैट मीन्स आउटपुट इज लेस देन द पैरेटो ऑप्टिमलिटी आउटपुट। तो यहाँ पर क्या है, ये Q1 इज द अंडर प्रोडक्शन एंड प्राइस इज ऑल्सो हायर देन द पैरेटो ऑप्टिमलिटी प्राइस। पैरेटो की ऑप्टिमलिटी E1 पे थी, तो प्राइस कितनी उसने डिटरमाइन की थी P1, बट द मार्केट इज चार्जिंग OP प्राइस दैट इज ऑल्सो हायर। सो इन दिस कंडीशन द मार्केट फेल्स टू अचीव द पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज ग्रेटर देन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट। जब प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब पता है फॉर्म को कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्शन कम करेगी, तो अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ जाती है। जितना प्रोडक्शन सोसाइटी को ज़रूरत है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन Q1 होना चाहिए था, बट उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एंड अंडर प्रोडक्शन सेज द मार्केट फेलियर, क्योंकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। प्राइस इज हायर देन द पैरेटो ऑप्टिमलिटी प्राइस एंड quantity is less than the optimum output. So in this way, whenever there is a difference in the private marginal cost and social marginal cost, then market fails. So positive externality के केस में अंडर प्रोडक्शन होता है और प्राइस ज़्यादा चार्ज होगा तो मार्केट फेल हो जाएगा, पैरेटो की ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो है वो अचीव नहीं हो पा रही। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी सेज व्हेन द कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ वन पर्सन अफेक्टिंग नेगेटिवली द अदर पर्सन और द सोसाइटी, देन इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब कंजम्पशन के केस में क्या है कि अगर किसी ने गुड्स को कंज्यूम किया और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे पे आ रहा है, दूसरे का वेलफेयर लॉस हो रहा है, अदर पर्सन का या सोसाइटी का, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फ्रॉम कंजम्पशन। कि एंड मेनली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अराइज इन केस ऑफ फैशन, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, दैट इज वेस्टफुल कंजम्पशन, विच रिड्यूस द यूटिलिटी ऑफ सम कंज्यूमर। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो केस आता है दैट इज स्मोकर और नॉन स्मोकर का। सपोज कोई स्मोकर है तो उसने कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है दूसरे को। कोई अगर स्मोक करता है, सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, उसकी कंजम्पशन से दूसरे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फ्रॉम कंजम्पशन। एंड इन दिस केस द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज लेस देन द प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। की यहाँ पे जो सोसाइटी का बेनिफिट है वो कम होता है नेगेटिव के केस में, और प्राइवेट का, स्मोकर है उसको तो बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसे तो स्मोक करना पसंद है, बट सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, तो सोसाइटी का बेनिफिट क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। सेकेंड इज द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि सपोज इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ फॉर्म affect the other forms in the industry or affect the society negatively, then it is called the
नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। अगर किसी एक फॉर्म के प्रोडक्शन से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी पे या अदर फॉर्म्स पे या किसी इंडस्ट्री पे, देन इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ इन प्रोडक्शन। सपोज़ एक रेजिडेंशियल एरिया में कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई है, तो उससे क्या होगा, जितने भी स्मोक एमिट हो रहे हैं या फिर वाटर बॉडी है वो पोल्यूट हो रहा है या नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, तो उसका जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो क्योंकि उनको उन पॉल्यूशन से अपनी हेल्थ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने हाउस होल्ड्स को क्लीन रखने के लिए। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस से आया है, तो ये प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। एंड इन दिस केस सोशल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन द प्राइवेट कॉस्ट, कि सोसाइटी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है और प्राइवेट की कॉस्ट कम होती है। एंड द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इज़ लेस दैन द प्राइवेट बेनिफिट। कॉस्ट सोसाइटी की ज़्यादा होगी और बेनिफिट सोसाइटी की कम होगी। So let's discuss with the help of a diagram. So in this case, in negative externality, we had seen the social cost is higher than the private cost, क्योंकि सोसाइटी कॉस्ट बियर कर रही है ना कि फॉर्म कॉस्ट बियर कर रही है। तो सोसाइटी की कॉस्ट हायर है तो एसएमसी कर्व अबव है और पीएमसी का जो कर्व है वो बिलो है, क्योंकि प्राइवेट जो इंडिविजुअल है या फॉर्म है उनकी कॉस्ट जो है वो लेस है। डिमांड कर्व और बेनिफिट कर्व, मार्जिनल बेनिफिट कर्व इज डी, एसएमसी इज सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड पीएमसी इज प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. In negative externality, society always bears a more cost than the private individual or firm. That's why this curve is above than the PMC. So according to market demand, PMC is also a supply curve. So equilibrium is at that point where demand and supply intersect, जहाँ पे demand और supply curve intersect कर रही है, और वो है हमारा E point. तो E point पे equilibrium है. That means a firm is producing OQ output and price OP is set. So price is OP and quantity is OQ according to market. But what the Pareto optimality condition says? Pareto says where the marginal benefit and social marginal cost is equal, then Pareto optimality condition can be achieved. तो जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट का कर्व और सोशल मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इक्वल है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ E1. तो E1 पे जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ऑप्टिमम क्वांटिटी शुड बी OQ1 एंड प्राइस शुड बी OP1. तो अकॉर्डिंग टू पैरेटो प्राइस शुड बी OP1 एंड ऑप्टिमम आउटपुट शुड बी Q1. बट द मार्केट इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट OQ और OP लेवल प्राइस चार्ज हो रहा है. In this case, the actual output is greater than the optimum output because actual is OQ and optimum output is Q1. So the QQ1 is the over production. कि optimum से ज़्यादा actual में production हो रहा है तो वो क्या हो गया, over production का पॉइंट है. और जब भी ओवर प्रोडक्शन होता है मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से लो हो जाएगी. तो प्राइस P1 चार्ज करना चाहिए था लेकिन प्राइस P है, OP है, तो प्राइस भी ऑप्टिमम प्राइस से कम है. तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो मार्केट फेल हो जाता है. पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन अचीव नहीं हो पाती है, और क्योंकि यहाँ पर भी पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन से अलग प्रोडक्शन भी हो रहा है और प्राइस भी डिफरेंट है. सो इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देयर इज अ ओवर प्रोडक्शन एंड प्राइस इज लेसर देन द पैरेटोज ऑप्टिमलिटी प्राइस. दैट्स वाई द मार्केट फेल्स, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है. दैट्स वाई देयर इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर. So these are the two types of externalities, positive and negative, and we had discussed about the market failure in case of externalities.
But how these externalities can be solved and how this market failure can be solved. So about the externalities and the solution of market failure, there is a theory that is called the Coase theorem or the Coase theory. It was given by the British economist Ronald Coase, who gets Nobel Prize in Economics in 1991 for this Coase theorem. So he is the person who gives the solution of market failure in case of externalities. As we know that he said the externalities arise due to the lack of and the absence of property rights. कि जब भी property rights नहीं होती मार्केट में, property rights defined नहीं होते, तब market failure arise होता है, externality arise होता है, क्योंकि property rights defined नहीं है individual के. क्योंकि जब हमें अपनी प्रॉपर्टी राइट्स पता ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि हम किसी को हार्म बेनिफिट दे रहे हैं या हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो प्रॉपर्टी राइट्स के एब्सेंस की वजह से एक्सटर्नलिटीज़ अराइज होती है और एक्सटर्नलिटी की वजह से मार्केट फेल हो जाती है. तो कोस ने क्या कहा कि अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन कर दें तो एक्सटर्नलिटीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं और मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. So by defining the property rights, Coase said, by defining property rights, we can solve the problem of externalities and market failure can be solved. So according to Coase theory, if two factors of an externality, one who is responsible for it, यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दो इंडिविजुअल है, एक जो एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, एंड द अदर हु इज़ अफेक्टेड फ्रॉम इट, दूसरा कौन है जो अफेक्ट हो रहा है, can agree on an agreement that they will produce the perfect production by factor. अगर हम उनको एक एग्रीमेंट के थ्रू एग्री कर लें कि जो परफेक्ट प्रोडक्शन है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन है, वो उतना ही प्रोड्यूस करें, तो ये जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नलिटी की, जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो रहा था, तो सॉल्व हो सकता है. क्योंकि वो एग्रीमेंट में जब होंगे तो ऑब्वियसली जितना बोला गया है उतना ही प्रोडक्शन होगा, जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन बोला गया है. तो थ्रू एन एग्रीमेंट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी. और ये होता है प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करना, कि व्हेन द प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी राइट इज डिस्क्राइब्ड विद क्लैरिटी देन द एग्रीमेंट कैन साइन बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड विक्टिम. कि जब प्रॉपर्टी राइट्स हम डिस्क्राइब कर देंगे दोनों की, कि कितनी क्या प्रॉपर्टी राइट्स इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी है और जो अफेक्ट हो रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर दोनों को हम डिफाइन कर देते हैं तो वो एग्रीमेंट साइन करके उन दोनों के बीच में हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं और पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन को अचीव कर सकते हैं. सो जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन एक्सटर्नलिटीज़ देयर इज़ मोर बार्गेनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है. जब भी एक्सटर्नलिटी अराइज होती है तो या तो अंडर प्रोडक्शन होगा या ओवर प्रोडक्शन होगा, तो दोनों के बीच में, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बार्गेनिंग होती है और कोई डील नहीं हो पाती है. तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे कोस ने बोला कि देयर शुड बी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है. क्योंकि पब्लिक गुड्स में भी मार्केट फेल हो रहा था तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो, और यहाँ पर भी जो है वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नेसेसरी है. कि जैसे एक केस है हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जो कि पॉल्यूशन सबसे बड़ा एग्जांपल है उसमें. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट इंक्लूजन नेसेसरी है, कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो एक्शन लिया जाए, और जिनको अफेक्ट हो रहा है इससे उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए. जैसे कि अगर पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर गवर्नमेंट के अगर रूल्स देखें, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो डायरेक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, देन एमिशन टैक्स लगाई जाती है, परमिट दिया जाता है कि कितना पॉल्यूशन क्रिएट करना है, कितना CO2 प्रोड्यूस करना है.
तो हर एक फैक्टर किसके थ्रू आया, गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन कर दिए रिस्पॉन्सिबल के लिए भी, जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है उसका भी, प्लस जो अफेक्ट हो रहा है उसके लिए भी। तो इसके थ्रू हम एक एग्रीमेंट के थ्रू दोनों इंडिविजुअल के बेनिफिशियरी और विक्टिम के बीच में एक एग्रीमेंट करके जो एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होती है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं और पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन को हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक एग्रीमेंट पे आ गए कि हम सोशल ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी अटेन हो सकती है। तो इस थ्योरी के लिए कोस को 1991 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट का, कि सपोज कि दो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, ए और बी, दोनों एक ही रूम में रहते हैं। अब ए क्या है, स्मोकर है और बी स्मोक नहीं करता। तो स्टूडेंट ए जो हमेशा स्मोक करता है, चाहे वो पढ़ रहा है, स्टूडेंट ए ऑलवेज स्मोक्स वाइल रीडिंग विच रिजल्ट बैड इफेक्ट ऑन बीज हेल्थ। वो पढ़ भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट स्मोक कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, बी की हेल्थ पे आएगा। उसके लिए तो बेनिफिट मिल रहा है, ए को तो पसंद है तो उसके लिए तो बेनिफिट है, बट बी के लिए क्या है, बी को पसंद नहीं है, तो वो बी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, बी का हेल्थ भी खराब हो सकता है। अब सिंस द एयर इन द रूम इज़ कलेक्टिव प्रॉपर्टी, अब जो लोग एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो तो दोनों कॉमन प्रॉपर्टी है, पब्लिक गुड है, तो ये तो कोई ये नहीं कह सकता, बी ये नहीं कह सकता कि तुम, ए ये भी नहीं कह सकता कि तुम सांस कम लो। तो जो एयर है वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी है दोनों स्टूडेंट के लिए। तो सो द स्टूडेंट बी कैन नॉट फोर्स स्टूडेंट ए टू स्टॉप द स्मोकिंग, कि वो बी भी ए को फोर्स नहीं कर सकता कि वो ए को कि स्मोकिंग बंद कर दो। उसकी मर्जी है कि मैं तो हवा में अपना स्मोक कर रहा हूँ, मेरा स्मोक तो हवा में जा रहा है और वो पब्लिक गुड है, तो मैं तुम्हें तो हार्म नहीं पहुँचा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा मतलब पब्लिक गुड के राइट्स तो सभी पे है, ए का भी है बी का भी है, दोनों का इक्वल राइट है। तो अब इस केस में क्या होगा कि बी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो गया। तो अब इस एक्सटर्नलिटी से क्या होगा, मार्केट फेल हो जाएगा। अब नेगेटिव है तो इट मीन्स ए क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा, और बी जो है ओवर प्रोडक्शन की वजह से बी का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसकी हेल्थ ख़राब होती जाएगी। बट इफ़ द प्रॉपर्टी राइट ऑफ द एयर ऑफ दैट रूम कैन बी डिफाइंड, कि जो उस रूम की जो एयर है, हवा है, उसकी प्रॉपर्टी राइट अगर डिफाइन कर दें और ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाए कि वो ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन लेवल तक ही प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो, तो एक्सटर्नलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है और मार्केट फेल जो हो रही थी वो ठीक हो सकती है। अब यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी राइट अब डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, प्रॉपर्टी राइट कैन गिव टू स्टूडेंट ए, then he can say to student B that to lower the smoke of cigarette in the air he will pay suppose 1 per cigarette। अगर ऐसे डिफाइन हो जाए कि स्टूडेंट ए जो स्मोक कर रहा है उसको ये बोला जाए कि अगर वो पर सिगरेट 1 रुपये वो बी को पे करेगा, अगर वो सिगरेट पीता है तो कुछ अमाउंट जो है $1 ले लो, 1 रुपी ले लो या 100 रुपीज़ ले लो, अगर वो बी को पे करता है, अगर वो सिगरेट स्मोक करता है तो इसमें क्या होगा कि बी जो है, बी को बेनिफिट मिलेगा कि उसे मनी भी मिल रहा है, प्लस ए का जो है कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अब ए की जो कॉस्ट पहले कम थी, कुछ भी नहीं लग रहा था, तो अब ए को क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन कम कर देगा क्योंकि उसकी कॉस्ट अब बढ़ रही है, क्योंकि जैसे वो सिगरेट पिएगा तो वो उसे बी को पे करना पड़ेगा, तो ए क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को कम कर देगा और बी का बेनिफिट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इन कंट्रास्ट इफ़ स्टूडेंट, ये तो ए का था, अब बी के लिए क्या होगा, इफ़ स्टूडेंट बी गेट्स प्रॉपर्टी राइट देन ही कैन से to the student A that if he wants to smoke then he needs to pay some amount
or some bugs like 1 rupee per cigarette or 100 rupees per cigarette or $1 per cigarette, कि जब प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन हो जाएगी तो बी ये कह सकता है स्टूडेंट ए को कि अगर तुम्हें स्मोक करना है करो, जितनी मर्जी करना है करो, तो तुम्हें सिर्फ मुझे इतने जो पर सिगरेट फिक्स हुआ है वो उतना पे करना पड़ेगा। सो अब स्टूडेंट ए क्या करेगा, वो उसको अपनी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, जो सिगरेट वो कंज्यूम कर रहा था वो कम कर देगा क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, प्लस बी का बेनिफिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या होगा, अब एक इधर से बी का बेनिफिट बढ़ रहा है प्लस इधर से इसने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि सिगरेट अब वो कम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसे पे करना पड़ रहा है। तो दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि वो कब कितना सिगरेट पिएगा और कितना ऑप्टिमम क्वांटिटी है, और उस ऑप्टिमम क्वांटिटी पे ए और बी आके एग्री होंगे, और जो एक्सटर्नैलिटी पहले क्रिएट हो रही थी कि ए जो है वो बी को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, वो इम्पैक्ट अब ख़त्म हो जाएगा। सो प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन होने से एक्सटर्नैलिटी को ख़त्म किया जा सकता है, और ये प्रॉपर्टी राइट गवर्नमेंट डिफ़ाइन कर सकती है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से डिफ़ाइन हो सकता है, जिससे कि मार्केट फेलियर होने से बच सकता है और पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन अचीव हो सकती है। दैट इज़ अ कोस थ्योरम। सो कोस says that externality can be removed through defining the property rights, and that is the solution of market failure. So it was all about the market failure in case of externalities, how externality create the market failure, whether it is positive or negative externality, and how it can be corrected. And we have discussed with the help of Coase theorem how property rights can be defined and it can solve the problem of market failure. So thank you so much for watching.